डायलॉगस के स्पिरिचुअल सेगमेंट प्रभा में आपका स्वागत है। प्रभा यानी कि फ्लो। किस चीज की फ्लो? नॉलेज की फ्लो, नॉलेज की प्रभा। स्पिरिचुअल जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहां एटीट्यूड और माइंड सेट बदल के किस तरह हम बेहतर इंसान बन सकते हैं एक आम इंसान से, इसी के बारे में चर्चा करेंगे स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज। आज मैं पहुंची हूँ टू अ वेरी वेल नोन इंस्टीट्यूशन रामाकृष्ण मिशन में, और हम बात करेंगे यहाँ के सेक्रेटरी स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज से। नमस्कार, आज मैं हूँ रामाकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली पहाड़गंज पर। स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज के साथ आज हमारी बातचीत होगी। स्वामी जी, वेलकम टू आवर न्यू चैनल डायलॉगस। डायलॉगस के स्पिरिचुअल सेगमेंट में आपका स्वागत हो। स्वामी जी से हम जानेंगे, आज ढेर सारी बातें करेंगे, और आज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो न्यू जनरेशन के लिए, इवन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स, उन सब के लिए आज हम बात करेंगे स्वामी जी से। आते हैं ठाकुर की बातों पे। श्री श्री रामकृष्ण देव परमहंस की जो वाणी में हमें मिलता है, ठाकुर ने शारदा माँ को इंट्रोड्यूस किया एज ए ज्ञानदायिनी माँ। हमेशा कहते थे कि माँ के पास जाओ, माँ ज्ञान देने आए हैं लोगों को, माँ है आपके ज्ञानदायिनी। तो स्वामी जी कुछ आप बात करिए। The goddess of learning, goddess of knowledge, is worshipped on Basant Panchami day. And Mother Saraswati gives us knowledge, both knowledge, mundane knowledge as well as spiritual knowledge. In this context, I like to tell you about the Holy Mother Sri Sarada Devi, the spiritual consort of Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna has rightly said that Sri Sarada Devi is Saraswati, Jnanadayini, giver of knowledge, all kind of knowledge, particularly the spiritual knowledge. And Ma Sarada, the Holy Mother, Sri Sarada Devi, came down to this earth to give us particularly the spiritual knowledge, by which we can make our life peaceful, meaningful. स्वामी जी, हम सबसे पहले हम जानेंगे आपसे एक और प्रश्न जो हर एक के मन में आती है कि what is the purpose of this human birth? From worldly standpoint, if you see, and all of us know, realize, think, that goal of human life is to eat, drink and be merry. खाना पीना मस्ती मौज करना और दुनिया से चले जाना. This is the general view of the people about the goal of human life. But from spiritual standpoint, this cannot be the goal of human life. The great saint of 19th century, Sri Ramakrishna, has rightly said that the goal of human life is to realize God. The goal of human life is to realize your own self. And this should be the goal of human life. स्वामी जी, एक और बात आपसे हम पूछेंगे कि गुड लाइफ के मतलब क्या है? Good life means, don't think that amazing wealth, name, fame, power, position, all these things are needed, there is no doubt about it. Good life means a balanced life. Nowadays we find that
there is no balance in life. There is an imbalance in life. And that is why nowadays the people, whether it's a younger generation or youngsters or aged people, all are feeling a kind of unhappiness. That is why you must live a balanced life. And balanced life in the sense that there should be peaceful life and meaningful life. This is called good life. And by this good life, give you undoubtedly a kind of strength, courage, peace, and all sorts of things. स्वामी जी, आज हम रामकृष्ण मिशन दिल्ली पहाड़गंज में हैं, आपके पास, ठाकुर के पास, माँ के पास, स्वामी जी के पास। तो स्वामी जी की कोई इम्पोर्टेंट वाणी जो आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोग इसको सुने, तो ऐसे कोई इम्पोर्टेंट वाणी जिससे जिंदगी सुधार हो, आप ऐसे वाणी डिस्कस करिए। You see, very important message of Swami Vivekananda is that Swamiji very emphatically said, man making is my mission. Manusya bano is very important. Then you may raise question, मनुष्य तो हम हैं, फिर मनुष्य बनना क्या है? मनुष्य हम हैं, लेकिन सही मनुष्य हम अभी नहीं बन पा रहे हैं। हमें सही मनुष्य बनना पड़ेगा और उसी आज के दिन में उसी की आवश्यकता है। There is an urgent need of real human being, good human being, better citizen, ideal citizen, enlightened citizen, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के men are wanted, everything take care of itself। अगर हमें मनुष्य मिल जाता है तो सब समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं, भारतवर्ष को आगे ले जा सकते हैं, खुद अपने को भी आगे ले जा सकते हैं। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर यंगस्टर्स बट फॉर ऑल ऑफ अस, दैट मैन मेकिंग, दैट इज व्हाई स्वामी जी सेड एम्फेटिकली दैट मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग एजुकेशन, हमें जिस ऐसे ही हमें शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। चरित्र के बिना हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे बस। अगर हम सही रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे जीवन में तो चरित्र की बहुत आवश्यकता है। दैट इज स्वामी विवेकानंद टाइम एंड अगेन ही हैज पुट एम्फेसिस ऑन मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। तो स्वामी जी, आजकल के इस झंझट के दुनिया में जहाँ इतने बाहरी जगत में लोग बिजी हैं, कैसे अपने आप अंदर घुस के ये चीज वो प्रैक्टिस करेंगे? कैसे मैन मेकिंग पॉसिबल होगा? Yes, it is possible, very much possible. There's no doubt about it. As I said just now, that you have to change your attitude. You have to change your attitude because you are not changing your attitude towards your life and you are not focusing in one thing, but you are focusing in so many things at a time. Because of competition, these, that, because of desires. That is why you are unable to bring back your mind inward. That is, the mind is going outside only. It is the nature of mind. So you will be focused on something, a particular thing. Automatically mind will get converged. And mind will become converged. Then mind will become inward. Mind will become inwardly. तो इसी तरह से हमें करना है। मनुष्य क्यों नहीं बन सकते हैं? काम करिए, काम तो है, काम तो हमें करना है, लेकिन हम उसके साथ साथ अच्छा मनुष्य भी बन सकते हैं। As I said, you have to change your attitude. हम अच्छा CEO बनना चाहते हैं, अच्छा MD बनना चाहते हैं, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, बनिए, लेकिन ये मत आप भूल नहीं जाना कि मनुष्य जीवन का कुछ लक्ष्य होता है और मनुष्य जीवन में कुछ वैल्यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो वैल्यू को मत भूलिए। फॉर बिकमिंग सी और बिकमिंग ईडी और बिकमिंग एनी अदर गुड और व्हाट इज कॉल्ड ऑफिसर्स, यू शुड नॉट compromise with the values. If you compromise with the values, then you cannot become good human being, enlightened citizen. That we have to understand. And always you must think that the values of human life is very, very important.
Values makes a man great. In our scripture it is beautifully said, dharmena hina pasubhi samanaha. Man without righteousness is nothing but animal. So man with righteousness is actually the real man, good man, better human being. स्वामी जी, एक चीज और, ग्रोन अप एडल्ट्स लाइक अस, तो इनके लिए भी लाइफ को ये अभी किस तरह फोकस करें? ग्रोन अप एडल्ट्स के लिए आप कुछ कहिए। ग्रोन अप एडल्ट्स के लिए तो मैं यही कहूँगा, बिकॉज ग्रोन अप एडल्ट्स नाउ दे आर holding good position in the society, in the offices, and they should focus on the development of our country, development of our motherland, and how our country can prosper, how our country can make progress in different fields. That you have to see, and that we can do it. The adult citizen, a little elderly citizen, we can do it by giving good type of service, the real service. Serve everything with dedication and devotion, whatever it may be. You are working in the office, you are working in the agriculture field, you are working in the what is called factory and other things, other places. So do it, whatever duty you have been assigned, you will do it with all dedication and devotion. When you do it with dedication and devotion, it becomes a service. Service to the society, service to the nation. And these are utmost duty and responsibility, being an elderly citizen or elderly adult, what I just you said now. माँ शारदा की एक कोई इम्पोर्टेंट बानी अगर आप शेयर करें हमारी वुमेन ऑफ इंडिया के लिए एंड अब्रॉड ऑफ कोर्स। देखिए, देयर आर मेनी इम्पोर्टेंट मैसेजेस ऑफ श्री शारदा देवी, होली मदर. आई लाइक टू टेल यू इन दिस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज ऑफ श्री शारदा देवी. सी टाइम एंड अगेन सेड इन बेंगाली, সহ্য করো, সহ্য করার মতন কোনো গুণ নেই. ইন ইংলিশ, ফরবিয়ারেন্স. Forbearance, in other words, we can say adjustment. Because we cannot adjust with each other. In the family also, we cannot adjust with our family members. As a result, we find that there is a lot of tension, stress, bad relations, all sorts of things take place. So, Holy Mother, उन्होंने कहा कि तुमको ये करना है, एडजस्ट करना है, सबको एडजस्ट करना है. इस एडजस्ट मीन्स अदर वर्ड्स आई जस्ट ऐसे फॉरबियरेंस. तुमको सहिष्णुता की बहुत आवश्यकता है. हम आजकल के दिन में बहुत असहिष्णु हो गए. असहिष्णु होने से काम नहीं चलेगा, सहिष्णु होना पड़ेगा सबके साथ, जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस. इन अदर वर्ड्स यू कैन से you have to tolerate others, you have to tolerate your family members. Unfortunately, we are not tolerating with family members. We become so intolerant. थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ पे हम गुस्सा करते हैं, मिजाज खराब खट्टा कर देते हैं, और हमें सहनशीलता जिसको कहते हैं हिंदी में, वो सहनशीलता धीरे धीरे कम हो रही है. परिवार में भी सहनशीलता कम हो रही है, समाज में भी सहनशीलता कम हो रही है, और इसके कारण हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए था वो उभर के आ रही है. तो होली मदर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ होली मदर इज़ टू फॉरबियर, टू टॉलरेट. सहन करो, एडजस्ट करो. अदर इज नो अदर वे ऑल्सो, यू हैव टू एडजस्ट. स्वामी जी, मैं घूम रही थी, ये आपकी जो एग्जीबिशन सेंटर है, तो इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो. तो सेम बात ही है, ये एक ही बात है. ठीक बात है. ये जो यहाँ एग्जीबिशन घूम के देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी की बात है. स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और पार्लियामेंट रिलीजन्स में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, एंड only 5 minutes lecture in the opening session of Parliament held at
Chicago in America in 1893, Swamiji said, and Swamiji actually told about the characteristics, the greatness of Hinduism, the Sanatana Dharma, the eternal religion. What is the characteristics of eternal religion? Swami Vivekananda has pointed out 2 points. What are the 2 points? That is universal acceptance and universal tolerance. That means, Swamiji in Parliament of Religion, Swamiji said that one should accept all religions, and not only accept but tolerate all the religions. The 2 words are very important for harmony of religion. Not only a harmony of religion, a harmony in your life also. There is acceptance and tolerance. हम लोग कंट्रोल्ड होते हैं माइंड और इंटेलेक्ट से. हर एक इंटेलेक्ट मतलब ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है ऐसे कि माइंड और इंटेलेक्ट के द्वारा वो कंट्रोल्ड होते हैं. तो हाउ कैन वी गो बियॉन्ड दिस बियॉन्ड आवर आउटर नेचर टू आवर इनर नेचर? कैसे आ सकते हैं इनर नेचर में? Because, as rightly you have pointed out, that you are controlled by your intellect, by your senses and the mind. With all these things you are controlled. But if you make your mind inward, then you have to control your mind. You have to concentrate your mind. When you concentrate your mind, then you slowly become the master of the mind. But unfortunately, we are not master of the mind. We are servant to our mind. So if you want to become, or if you want to have what is called, if you want to get master of mind, आप मन के स्वामी बनना चाहते हैं, तो फिर आपको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की जरूरत है. तब आप माइंड के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, माइंड आपके कंट्रोल में रहेंगे. When mind gets concentrated, Swami Vivekananda has time and again, this concentration of mind is the key to success, any kind of success. मन संयम, मन की एकाग्रता ही सभी सफलताओं की कुंजी है. So you have to concentrate your mind. And if anybody's mind is get concentrated, he can do anything and everything. You can everything, and so many what is called marvelous thing you can do. Marvelous thing you can do. Just I will quote one incident from Swami Vivekananda's life. Swamiji came to Belur Math after America, touring America and giving lectures. Then Swamiji had a wish to set up a good library. So he asked his disciple, Sarachandra Chakravarti, bring all volumes of encyclopedia, Britannica Encyclopedia. And at that time it was 10 volume of Britannica Encyclopedia. And the Sarachandra Chakravarti brought this encyclopedia and brought it and put it in the library. When he was putting in the library, then he asked Swami Vivekananda, 10 volumes of encyclopedia, is it possible for a person in one life to read, to comprehend or to understand this 10 volumes of Britannica Encyclopedia, so big volume? Well, yes, it is possible. Why not? It's possible. He said, all right. You just take out any volume of encyclopedia and just randomly you open it and you ask me, I will give the question, answer. Then just I think he took out one volume of encyclopedia and randomly he opened it and he asked the question from encyclopedia to Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, in the right way, he answered. Then Sarachandra Chakravarti got astonished. Is it possible? Yes, it is possible. How? Swami Vivekananda replied, because of concentration of mind and brahmacharya. Because of concentration of mind and observing brahmacharya, it is possible. There are many incidents like this in Swami Vivekananda's life. So, concentration of mind is very much needed for the student, for anybody else. If your mind is concentrated, you can perform your duty and responsibility very effectively. स्वामी जी, जैसे बहुत लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, फैमिली प्रेशर्स भी हैं
कि आपको फैमिली में जाना है, फैमिली में घुसना है, फैमिली में एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद आपको फैमिली के अंदर होना होगा, आपकी स्त्री होंगी, आपके बच्चे होंगे, तो उस क्षेत्र में वो उस जो इंसान है उसका भी तो बहुत सारे टेंशन बढ़ जाते हैं। तो ये जो लाइफ की आप बातें कर रहे हैं, कंसंट्रेशन और ये जो ब्रह्मचर्य, तो फिर उसके लिए पॉसिबल नहीं है उस क्षेत्र में, कैसे होगा? सब पॉसिबल है। ये जो बार बार हम लोग कहते हैं टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ज़्यादातर स्ट्रेन, स्ट्रेस ये सब हम ही लोग के क्रिएट करते हैं। वी क्रिएट ऑल टेंशन एंड स्ट्रेस। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वी कैनॉट मेक अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर। अपने आप हम क्रिएट करते हैं। क्यों स्ट्रेस, क्यों फ्रस्ट्रेशन होता है? हम बहुत चाहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऑल द टाइम वी वांट दिस थिंग, दैट थिंग, एंड आवर डिजायर्स आर इननंबरेबल। देयर इज एन एंड टू डिजायर। और जब हमारी वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है तब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दिमाग खट्टा हो जाता है, गुस्सा में आ जाते हैं। ये हम क्रिएट कर रहे हैं। और ये भी हमें सोचना चाहिए, इन वन लाइफ इज नॉट पॉसिबल टू एंजॉय एवरीथिंग, टू हैव एवरीथिंग, नॉट पॉसिबल। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, 24 घंटा हम केवल चाह रहे हैं। ऐसा होने से तो मन की शांति नहीं होती है, मन की शांति नहीं रहती है। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये जो हम कहते हैं कि स्ट्रेन में कैसे करेंगे, वो करेंगे, सांसारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में, हम सब कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते हो? देयर आर मेनी फैमिलीज आई नो पर्सनली दैट दे आर लिविंग गुड लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ। कैसे बैलेंस्ड लाइफ करते हैं? उनका क्या है थ्योरी? उनका थ्योरी है जो भी हमें मिल रहा है, जो भी हमें मिला है, मोर देन एनफ, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। ये एटीट्यूड होनी चाहिए, ये एटीट्यूड होनी चाहिए। लेकिन ये एटीट्यूड तो हमारा नहीं है। हम तो खाली मांगते रहते हैं, मांगना चांगना, मांगते रहते हैं। चाह की कोई अंत नहीं है। तो फिर स्ट्रेस तो होगा, झगड़ा तो होएगा, ये सब होता है। स्वामी जी, ईगो, एक इंसान के अंदर एक ईगो है, तो इस ईगो का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, तो आप हमें ज़रा ये बताएंगे। देखिए, ईगो तो होनी चाहिए। इफ देयर इज एन ईगो, यू कैनॉट डू एनी वर्क। Without ego, you do not have any what is called worldly existence. मतलब रजगुण जो भी हो, उसको मत लाइए रजगुण को। तो ईगो तो रहना ही है। ईगो है बोल के आप काम कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, ईगो तो रहना ही है। लेकिन किस तरह का ईगो रहना है? दैट इज व्हाई श्री रामकृष्ण ब्यूटीफुली सेड, राइप्ड ईगो एंड अनराइप्ड ईगो। अनराइप्ड ईगो माने क्या होता है? हम तो बड़े हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, जिसको कहते हैं हम हिंदी में अहंकार। जब इस तरीके की अहंकार हो जाती है कि अरे हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लाइक कोई भी नहीं है दुनिया में, आई कैन, जो इस तरह के जो अहंकार होता है, वो अहंकार बहुत डेंजरस होता है। वो अहंकार हमारे जीवन के लिए बहुत भयानक होता है। वो अहंकार नहीं, हम्बल। श्री रामकृष्ण कहते हैं राइप्ड ईगो, यू आर सर्वेंट ऑफ गॉड, वी आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। हम सबके सेवक हैं, हमें ये मौका दिया गया है सबको सेवा करने के लिए। इसी ये जो दृष्टि है, इसको कहते हैं राइप्ड ईगो। इस तरह के ईगो से कोई भी खतरा नहीं है, यही आपको समझना है। ईगोलेस पूरा हो जाने से तो फिर मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसी तरह का ईगो होना चाहिए, एज श्री रामकृष्ण सेड दैट राइप्ड ईगो। राइप्ड ईगो का उदाहरण को बहुत अच्छा उदाहरण है। हम इस समाज के सेवक हैं, हम परिवार के सेवक हैं। जहाँ जिस ऑफिस में काम करते हैं, हम वहाँ उस ऑफिस का हम सेवक हैं। जस्ट वी आर द सर्वेंट, वी आर सर्विंग। यही एटीट्यूड होना चाहिए। नहीं तो हम तो सीईओ हैं, अब तो ये है, हम तो ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, हम सबको ये दिखा दूंगा, ये कर दूंगा। ये सब करने से तो काम नहीं चलेगा। एंड ही कैनॉट बी और शी कैनॉट बी ए गुड मैनेजर, ही और शी कैनॉट बी ए गुड सीईओ, जिसको यही अहंकार होता है। और अहंकार क्या कर सकता है, सबसे बड़ा उदाहरण है जो अनराइप्ड ईगो होता है, भयंकर ईगो जो होता है, वो क्या कर सकता है, सर्वनाश कर सकता है। You see the life of Ravana. Ravana is very powerful. And he was more powerful than Rama. And he was very much learned than even Rama.
लेकिन उसको ऐसा दशा क्यों हुई? इसका मुख्य कारण है रावण का इतना अहंकार था, कि इतना ज़्यादा अहंकार था, और अहंकार के कारण कौशल्या उनकी माता पूछ रही है रामचंद्र से, जब रावण को वध करके रामचंद्र वापस आते हैं, तुमने कैसे वध किया इसको, रावण को? तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, मैंने ही वध किया है, उनका अहंकार ही उसको वध किया है, मैंने इसको वध नहीं किया है। जब अहंकार इतना बढ़ जाता है, भयंकर हो जाता है। स्वामी जी, एक बहुत बड़ी समस्या भी कह सकते हैं या एक ट्रुथ भी कह सकते हैं कि आज के दिन में मेन वुमेन बोथ आर वर्किंग, एक जैसे काम कर रहे हैं सब। ऐसे सिचुएशन में हमारा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, लाइफ को, जनरल लाइफ जो हम बिलीव कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसको स्पिरिचुअल लाइफ से अलग मत कीजिए। इंटीग्रेशन, ये लाइफ तो है इंटीग्रेशन ऑफ जनरल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, सब एक ही हैं। जब जनरल लाइफ जो हम जी रहे हैं, व्हेन इट बिकम्स स्पिरिचुअल लाइफ, अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, द चेंज ऑफ माइंडसेट, चेंज ऑफ एटीट्यूड, दृष्टिकोण का परिवर्तन। जिस दृष्टि से आप साधारण जीवन जी रहे हैं, उस दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदल दीजिए। अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, कि आप काम कर रहे हैं, आप लोग से वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन जिस दृष्टि से वार्तालाप करते हैं, स्वार्थ के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जैसे बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं अपने केवल स्वार्थ के लिए। जब बातें करें, कुछ काम करें केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तब क्या होता है, वही वार्तालाप, वही काम, वही जीवन स्पिरिचुअल हो जाता है। दैट इज वाई स्वामी जी सेड वेरी राइटली, द अनसेल्फिशनेस इज गॉड, अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। निस्वार्थता, जब हम अपने जीवन को निस्वार्थ बनाते हैं, हमारा जीवन तो स्वार्थ से भरा हुआ है, देन यू कैन नॉट बिकम स्पिरिचुअल। वही जीवन है लेकिन स्वार्थ से भरा हुआ है। जब आपके जीवन से ये अपनी स्वार्थ धीरे धीरे कम हो जाएगा, जब आपका जीवन में निस्वार्थता आ जाएगी, when unselfishness will come to your life, then your life will become spiritual. That is why Swami Vivekananda said, unselfishness is the test of spirituality. ये कसौटी है, निस्वार्थता आध्यात्मिकता का कसौटी है। और केवल यही नहीं कहा स्वामी विवेकानंद जी, जैसे मैंने कहा कि अनसेल्फिशनेस इज गॉड, स्वामी जी निस्वार्थता को ईश्वर के साथ तुलना करते हैं। तो जब हम स्वार्थी बन जाते हैं ना, तब हमारा लाइफ स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। दैट इज वाई आई लाइक टू कोट which Swami Ranganathan ji used to tell time and again, that how one can become spiritual and how one can understand that he or she is progressing in the spiritual life. Can you love others? बहुत मुश्किल है। नहीं, वो तो है, तो मुश्किल तो सभी कुछ है। मुश्किल बोल के छोड़ देगा, बैठे रहेगा थोड़ी होगा। आपका स्पिरिचुअल होना चाहिए, वर्ल्डली लाइफ में भी आपको सक्सेस होना चाहिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। किसी भी लाइफ में बिना मेहनत से नहीं होगा। यू आर लीडिंग द वर्ल्डली लाइफ, कितना मेहनत करते सुबह से शाम तक। उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ अगर आप चाहें तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। किसी लाइफ में फोकट में नहीं होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, स्वामी रंगनाथन जी कहते हैं, क्या तुम सबसे प्रेम कर सकते हो? विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी भेदभाव से अगर आप सबको प्यार कर सकते हो, सबसे प्यार कर सकते हो, यू कैन लव अदर्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, देन यू आर गोइंग टू बी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जीवन आपको मिलेगा। और भी कहते हैं, डू यू फील वननेस विथ अदर्स? आप क्या सबके साथ एकत्व अनुभव करते हैं? हम लोग करते हैं,
बच्चे माँ बच्चे से एक आत्म फील करते हैं, वननेस फील करते हैं, लेकिन केवल बच्चों से नहीं, पति से नहीं एक आत्म फील करना है, सबसे, विथ ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड नेशनैलिटी, रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। अगर आप सबसे एकात्म अनुभव कर सकते हैं, फील वननेस, देन यू आर स्पिरिचुअल, देन यू कैन हैव स्पिरिचुअल लाइफ। Again he is telling, third, this is important, both three are very important, that can you attain the peace of mind? आपके जीवन में आपको प्रशांति मिली है? अगर प्रशांति मिली है, शांति मिली है, तो अपने आप को केवल अंदर मत रखिए, उसको चारों तरफ बांट दीजिए, रेडिएट among outside yourself, radiate outside whatever you have attained the peace of mind। अगर ये आप सब करते हैं, देन स्पिरिचुअल हो जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ बनने के लिए आपको ये वर्ल्डली लाइफ या जो जनरल लाइफ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत गलत फहमी है कि स्पिरिचुअल लाइफ होने से बाबा जी बन जाओ, माता जी बन जाओ, सब मुड़ा के जंगल में चले जाओ और कुंभ में ला के 1000 डुबकी लगाओ, ऐसी बात नहीं। एक कुंभ में डुबकी काट दो तो जो भी हो, तो ये जो है, तो इसलिए मत सोचिए कि आप अलग मत समझिए। वही लाइफ, एक ही लाइफ तो एक ही है, उसको दृष्टिकोण बदल दीजिए, यू विल बिकम स्पिरिचुअल। बस हो गया, ऐसा ही हमें स्पिरिचुअल लाइफ मिलेगा। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ये मॉडर्न एज में हमारे लाइफ पर ये जो प्रभाव पड़ रहा है टेक्नोलॉजी का, तो ये आप इसमें क्या कहते हैं? आप कुछ कहिए लोगों के लिए। कि आधुनिक युग विज्ञान और तकनीकी से बहुत प्रभावित है, वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो मॉडर्न जो युग है, ये इज द एज ऑफ कंज्यूमरिज्म, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, भोगवाद। मॉडर्न एज जो है, ये तो भोगवाद से भरा हुआ है, और हम भोगवाद में विश्वास करते हैं, वी बिलीव इन कंज्यूमरिज्म। और ये हम नहीं सोचते हैं कि ये भोगवाद में रहने से ये केवल साइंस और विज्ञान की तकनीकी की उन्नति से हमारा जीवन कभी भी शांत नहीं हो सकता है, जीवन कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता है, हमारा जीवन कभी मीनिंगफुल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इस सब के साथ और एक जीवन को अपनाना चाहिए, और एक जीवन नहीं, जीवन में है ही वो, उसको विकसित करना चाहिए। ये हमारे जीवन में है, डोंट थिंक दैट यू हैव टू ब्रिंग आउटसाइड। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पाश्चात्य देश में उन्होंने गया और ये सब विज्ञान और तकनीकी का उन्नति और ऐसा कंज्यूमरिज्म को उन्होंने देखा, देख के बताया कि अगर तुम लोग आध्यात्मिकता को नहीं अपनाओगे तो योर मेटेरियलिस्टिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन विल क्रम्बल इनटू पीसेस। तुम्हारी जो ये पाश्चात्य जो सभ्यता है, संस्कृति है, द मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, भौतिक सिविलाइजेशन, कल्चर, ये एकदम तोड़ फोड़ के एकदम खत्म हो जाएगा, क्रम्बल इनटू पीसेस। इसलिए स्वामी जी ने उन्हें वार्निंग दिया कि अगर आध्यात्मिकता को नहीं अपनाओगे तो तुम्हारी दशा बहुत खराब हो जाएगी, परिस्थिति बहुत ही बिगड़ जाएगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद प्रीच्ड पर्टिकुलरली इन द वेस्ट वेदांत, अद्वैत वेदांत और वेदांत। स्वामी जी इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए उन्होंने और दूसरा ये सब प्रीच नहीं किया, ही प्रीच्ड वेदांत। क्यों वेदांत का प्रीच किया उन्होंने? कि वेदांत प्रीच करने से हमारे जीवन की उन्नति हो सकती है। अदर साइड ऑफ द लाइफ क्या उन्नति क्या हो सकती है कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, हमारा जीवन बहुत शांत होगा, अच्छा होगा, जीवन दुख से भरा नहीं होगा, कष्ट से भरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा, वेदांत का प्रचार किया, और उन्होंने यही वेदांत के बारे में कहा कि ईच सोल इज अ पोटेंशियली डिवाइन, गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विदिन।
हमारे अंदर हमारे भीतर दिव्यता है, वो दिव्यता को उजागर करो। जब दिव्यता का जागरण हो जाता है, जब दिव्यता विकसित हो जाती है हमारे अंदर हमारे भीतर, तब हम ये सब जो चीज़ें भोगवाद और ये और वो से जो खतरा उत्पन्न हो सकता है वो सब खत्म हो जाता है। आप यू लीड वर्ल्डली लाइफ इन द सेंस बैलेंस्ड लाइफ, एट द सेम टाइम यू लीड स्पिरिचुअल लाइफ, देयर इज नो हार्म इन इट, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मॉडर्न एज में हमें यही करना है। जब आध्यात्मिक दिव्यता हमारे अंदर विकसित हो जाती है, हमारे अंदर जितने भी बुराइयां हैं सब नष्ट हो जाता है, सब ऑल इविल टेंडेंसीज गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन द डिविनिटी गेट्स मैनिफेस्टेड इन यू एंड एवरीबॉडी। स्वामी जी, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे IIT से पास आउट बच्चे या नौकरी कुछ साल नौकरी करने के बाद दे आर ज्वाइनिंग RK मिशन, रामाकृष्ण मिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। विदेश में बहुत देखिए वो बात ऐसी नहीं है कि सभी IITian रामकृष्ण मिशन के सन्यासी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि यही प्रमाणित करता है कि ये जो हमारे जीवन है, साधारण जीवन है, जो भौतिक जीवन है, वर्ल्डली लाइफ है, और ये सब IIT बनो, ये बनो, वो बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बहुत पैसा कमाओ, देश विदेश में जाओ, रील करो, ये करो, से करो, ये सब में उन्होंने देखा है कि ये सब में कुछ है ही नहीं। वो 2 दिन के लिए है, सब ठीक है, लेकिन इफ यू वांट टू हैव परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, तब तो फिर इधर आना पड़ेगा। इधर आना पड़ेगा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सबको साधु बन जाना पड़ेगा, सबको रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कोई अखाड़े में जाके ज्वाइन, कुंभ मैंने देखा बहुत सारे लोग अखाड़ा में आके ज्वाइन कर रहे हैं, स्वामी बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं। इसकी बनने की नहीं है। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि वो एटीट्यूड ऑफ लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने देखा कुछ नहीं तो उन्होंने ठीक है, हम अपना साधना का पथ, आध्यात्मिक साधना का पथ अपना लें और साधना करते हैं। और साधना करने कोई रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करता है, कोई चिन्मय मिशन में जाता है, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, ज्वाइन करता है साधना करने के लिए, बस यही है और कुछ नहीं। स्वामी जी, आपसे एक बात हम कहना चाहते हैं, पूछेंगे आपसे एक बात। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मतिथि एक बहुत बड़ी उत्सव आपने मनाया रामकृष्ण मिशन में, तो जो कि एक यूथ फेस्टिवल आपने ऑर्गेनाइज किया यहाँ पर, उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इन द ईयर 1984 ये चर्चा हो रही थी, आलोचना हो रही थी कि हम युवा दिवस मनाएंगे इंडिया के लोग। तब प्रश्न आया कि युवा के एक नेता होने चाहिए, एक आइकॉन होने चाहिए, एक रोल मॉडल होने चाहिए युवा के लिए, जिसको फॉलो करे, तभी तो हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। तो कौन हो सकते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो यूथ के आइकॉन हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, ये रोल मॉडल हो सकते हैं। बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारे मीटिंग हुई, कमेटी बनी, और वो सब करने के बाद सब कोई का यही राय रहा कि एकमात्र स्वामी विवेकानंद जी ही युवा के आइकॉन बन सकते हैं, रोल मॉडल्स बन सकते हैं, या युवा के नेता बन सकते हैं। यूनानिमसली इट वाज डिसाइडेड। तब से हम स्वामी विवेकानंद जी को जन्मदिन, जिसको 12 जनवरी कहते हैं, उसका हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी युवा के नेता या रोल मॉडल या आइकॉन थे। और खास करके स्वामी विवेकानंद जी ने यह अनुभव किया कि देश को आगे ले जाने के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को विश्व पटल पर नेता बनाने के लिए, गुरु बनाने के लिए
ये युवा शक्ति की आवश्यकता है, युवा शक्ति की आवश्यकता है, युवा की आवश्यकता है। क्यों कि युवा में ही वो शक्ति होती है, वो पावर एनर्जी होती है। और युवा शक्ति भयंकर शक्ति, ट्रिमेंडस पावर, ऊर्जा जो युवा में है बूढ़ा में थोड़ी होगा, स्वाभाविक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि युवाओं को बार बार उन्हें ललकारा, बार बार ही गिव क्लेरियन कॉल टू यूथ कि देश के लिए काम करो, देश के लिए समर्पित हो जाओ और देश को, मातृभूमि को आगे ले जाओ। इसलिए युवाओं को बार बार उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने गिव क्लेरियन कॉल टू यूथ कि तुम आगे बढ़ो, देश को भी आगे बढ़ाते ले जाओ। यही है। तो हर साल 12 जनवरी को स्वामी जी की जो बर्थ डेट है, उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस आप मनाते हैं। तो आज हम स्वामी जी से काफ़ी बातचीत करके हम बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बहुत फुलफिलमेंट हो गई है मेरे अंदर। और मैं ये सोचती हूँ कि आप भी जब सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप भी ध्यान से सुनेंगे। स्वामी जी की जो इम्पोर्टेंट बातचीत, जो हर एक मनुष्य के लिए, हर एक स्टेज, हर एक वुमेन के लिए, हर एक एडल्ट के लिए उन्होंने जो कहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब बातों को उपकार में ला सकते हैं। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम। आप हमारे इस डायलॉग्स के स्पिरिचुअल सेगमेंट में आप आए और आपने इतने सारी बातें की जो एक एक शब्द सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Thank you very much for sharing my views with you all. Thank you very much.